हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSPCL LDC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾर्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾर्ट 1 ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PSPCL 2019 ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PSPCL LDC ਤੇ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। If the speed of car is increased by 10 km per hour, it take 2 hours less for the car to cover the same distance original speed of car। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾर्ट 1 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘਟੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਪੀਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਪੀਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਵਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ S1 × S2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ D ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਥੇ S1 ਮਾਈਨਸ S2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, S2 ਮਾਈਨਸ S1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਓਕੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ T1 ਮਾਈਨਸ T2 ਜਾਂ ਫਿਰ T2 ਮਾਈਨਸ T1 ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ S1 ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ S, ਸੋ S ਇੰਟੂ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 10 ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ S ਪਲਸ 10 ਮਤਲਬ S1 ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਸੀ, S2 ਫਾਈਨਲ। ਓਕੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 600। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੀਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ S2 ਮਾਈਨਸ S1 ਕਰੀਏ ਤਾਂ S2 ਕਿੰਨਾ S ਪਲਸ 10 ਮਾਈਨਸ S ਕੀਤਾ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ 2 ਆਵਰਸ ਦਾ ਨਾ 2। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜੂਗੀ S² ਪਲਸ 10S ਮਾਈਨਸ 3000 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਈਏ ਕੀ ਆਣਗੇ 60S ਮਾਈਨਸ 50S ਮਾਈਨਸ 3000 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ S ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, S ਪਲਸ 60 ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ 50 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, S ਪਲਸ 60। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ S ਪਲਸ 60 ਤੇ S ਮਾਈਨਸ 50 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਸੋ ਸਪੀਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50। ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਓਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ हैं ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। A leaves his school at the same time every day। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ A, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ। If he travels at 18 km per hour, he arrive home at 5:30 PM। केस 1 के ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੀ ਔਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ 18 km per hour ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ 5:30 PM। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 8 km per hour ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ 6:15 PM। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਐਟ ਵਟ ਸਪੀਡ ਮਸਟ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਹੋਮ ਐਟ 6 PM। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, सोचना किवें है। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, स्पीड। ठीक है, हुण इस अपने कोल स्पीड कड्ढण दे लई दो चीज़ां पता होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। पहली चीज़ की पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल किया, तो सैकेंड की पता होना चाहिए जो अपने को डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो स्पीड कढ़नी है, तो ये सैकेंड चीज़ अपने को की पता होनी चाहिए वह इनिशियल टाइम कितना है, कि वह किन्ने बजे स्कूल चो चलता है, क्योंकि इत्थे अपने को गिवन है ना कि वह सेम टाइम चलता है हर रोज़। ठीक है, जो उसकी स्पीड वध जाती है तो उन्होंने घट टाइम लगता है, जो घट जाती है तो उन्होंने वध टाइम लगता है। सो ये आपाने दो चीज़ां फाइंड करनी है, डिस्टेंस तो इनिशियल टाइम। सब तो पहला आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस किमें फाइंड करांगे, वही फॉर्मूला लगाओ, S1 इंटू S2 इक्वल्स टू D S1 माइनस S2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। ओके, सो स्पीड पहली कितनी दी हुई है 18, सैकेंड कितनी है 8 इज इक्वल टू D फाइंड करना है, 18 चो 8 माइनस कितने 10 डिवाइड बाय हुण T1 माइनस T2 की वैल्यू किमें आऊ, देखो अपने को T1 है, ये कितना है T2। सो 5:32 6:15 तक अपन कैलकुलेट करना है भी कितना डिफरेंस है टाइम का। 5:30 टू 6 PM तक कितना होया 30 मिनट्स प्लस उस 15 मिनट्स होर ऐड कर दो, मतलब किन्ने होए 45 मिनट्स। ओके, हुण जिहड़ा 1 आवर हुंदा है उहदे विच किन्ने मिनट्स हुंदे हैं 60 मिनट, तो एक अगर आप मिनट कढ़ांगे तो वो किन्ने आवर्स होंगे 1/60। ओके, सो 45 मिनट्स नूं आपां आवर्स किमें कन्वर्ट करांगे, डिवाइड बाय 60। सो इत्थे लिखांगे 45 डिवाइड बाय 60, जो इहनूं सॉल्व करोगे तो इत्थे अपने कोल डी की वैल्यू कुछ एवें आ जाऊगी 18 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, मैं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म दे विच एवें ही रख रही हूँ ताकि ईजी होवे कैलकुलेट करना। हुण अपना एक काम तो हो गया, किहड़ा डी की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, हुण इनिशियल टाइम कढ़ांगे, थोड़ा सोच के देखो इनिशियल टाइम किमें कढ़ांगे। हुण अपने कोल इत्थे इनिशियल टाइम गिवन नहीं है, बट इत्थे स्पीड भी आपां नूं पता है कितनी है, तो डिस्टेंस भी पता लग गया। सो टाइम कढ़ लांगे कि इत्थों तो इत्थे तुहानूं टोटल टाइम कितना लगता है। जो टोटल टाइम पता लग गया, फाइनल टाइम दिता होया है, टोटल जो इन्ना माइनस करके पहला आपां कढ़ लांगे। ओके, हुण देखो टाइम क्या हुंदा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस कितना है 18 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो स्पीड की वैल्यू कितनी है 18। सो अपने को टाइम कितना आ गया 3/5, एक इस आवर्स के विच। हुण 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 3/5 आवर नूं आपां मल्टीप्लाई करांगे ना 60 नाल, ताकि मिनट्स कन्वर्ट हो जाए, तो कितना होगा 12। ओके, सो इत्थे कितना आ गया 36 मिनट्स। हुण अपने को फाइनल टाइम कितना है 5:30 PM। ठीक है, इनिशियल कढ़ना है कि चलिया किन्ने बजे, मतलब 5:30 जो आपने 36 मिनट्स माइनस करने, किमें करोगे, सब तो पहला 5:30 जो 30 मिनट माइनस करो, किन्ने ते आए आप 5 PM ते। हुण इहदे विचों 6 मिनट होर घटा दो, तो किन्ने आए 4:54 PM। ओके, सो ये अपना इनिशियल टाइम हो गया कि इन्ने बजे वो रोज़ चलता है। ओके, सो इनिशियल टाइम कितना आ गया 4:54 PM। आई होप समझ आ गया होगा थोनों, इनू एक बार खुद सोच के देखियो, थोनों क्लीयर हो जाऊगा। ओके, सो इत्थे मैं बेसिकली इनू रब कर रही हूँ, आई होप तुसी नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, सो हुण देखो, हुण आपां कढ़दे हैं कि स्पीड कितनी है। हुण अपने कोल सिचुएशन की है, अपने कोल इत्थे टाइम गिवन है। ठीक है, कि वो किन्ने बजे चलता है 4:54 PM ते चलता है, तो पहुँचता किन्ने बजे है 6 PM ते। ओके, तो अपने ने स्पीड कढ़नी है, तो अपने को डिस्टेंस भी गिवन है। सो सब तो पहला आप की करांगे, इत्थे टाइम कैलकुलेट करते हैं कि उन्होंने लगता किन्ना 4:54 तो अगर आप 6 PM तक देखिए किन्ने मिनट्स होए, ये काउंट करो। सो सब तो पहला अगर आप 4:54 नूं 4:54 ना समझ के 5 to 6 समझो, पहला 5 to 6 किन्ने होए 1 आवर। ठीक है, हुण 4:54 ते 5 PM दे विच कितना फर्क होया 6 मिनट्स का, यानी कि 1 आवर 6 मिनट्स उन्होंने लगते हैं पहुँचने के लिए। ओके, सो हुण देखो जो डिस्टेंस है वो अपने कोल किस च है किलोमीटर्स। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई सी 18 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर। सो आप मिनट्स नूं भी आवर्स कन्वर्ट करांगे ताकि यूनिट सेम हो जाए, किवें करांगे डिवाइड बाय 60। ओके, सो 6 नाल इहनूं कट कर दो, कितना आ गया 10, मतलब यदि वैल्यू आ गई बेसिकली 11/10 आवर्स। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 18 इंटू 3/5 इंटू
टाइम की वैल्यू कितनी है 11 तो ऊपर चला गया 10 ओके। सो जो तुसी इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो कितना होगा 108/11 इनू मिक्सड फैक्टर्स कन्वर्ट करन ते आऊगा 9/11 आवर सॉरी किलोमीटर पर आवर ओके क्योंकि स्पीड है ना। सो इन्ना आंसर आ गया। थोड़ा जिहा टफ क्वेश्चन है बट इनू समझने की कोशिश करियो समझ आ जाऊगा। सो इसका आंसर क्या आया डी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। 2 trains start from station A and B. Then they travel towards each other at the speed of 40 and 65 km per hour. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 km more than first, the distance between A and B. हुण अपने कोल 2 स्टेशनस हैं A ते B ओके। ਉਹ 2 स्टेशनस तो ट्रेनस चल रही ने। एक ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल ते दूसरी ट्रेन किन्ने दी स्पीड ते चल रही है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ते ठीक है। जिथे वो मीट किते उस टाइम ते जिहड़ी सैकेंड ट्रेन है उन्हें 60 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किते हैं फस्ट नालों। सपोज अगर आप लै लीए कि A to X जिहड़ी ट्रेन A तो चल रही है उन्हें डिस्टेंस कितना ट्रैवल D तो B कितना करूगी D + 60 ओके क्योंकि दिता है ना कि 60 किलोमीटर ज़्यादा है। हुण एक गल देखो जिन्ना टाइम वो ट्रेन नूं लगदा जिहड़ी A तो चलती है X तक पहुँचण नूं उन्ना ही टाइम उस ट्रेन नूं लगूगा जिहड़ी B तो चलती है X तक पहुँचण नूं ओके। सो इत्थे जिहड़ा TA है वो किहदे कोल आऊगा TB दे ओके। सो टाइम A दा कितना होया जिहड़ी ट्रेन A तो चली टाइम की हुंदा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ओके। सो TA दी वैल्यू कितनी आई D क्योंकि उन्हें D डिस्टेंस ट्रैवल किया X तक पहुँचने लई तो उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 40। सिमिलरली जिहड़ा TB है उन्हें कितना डिस्टेंस किया ट्रैवल D + 60 तो स्पीड कितनी है 65 ओके। सो जो तुसी ये दोनों नूं सॉल्व करोगे तो इत्थों D की वैल्यू अपने को आ जाऊगी 96 ओके। सो इत्थे की पूछा होया है डिस्टेंस कितना A ते B दे विच। सो टोटल डिस्टेंस कितना आया 2D + 60 क्योंकि D A वाला है तो उस तो बाद D + 60 ओके। सो इत्थे तुसी वैल्यू फिल कर लो तो फाइनली जिहड़ा अपने कोल आंसर आ जाऊगा वो कितना आ जाऊगा 252 किलोमीटर्स ओके। सो आंसर इज C। आई होप तुहानूं समझ लग गया होगा क्वेश्चन। ये बेसिकली आपां टाइम नूं इक्वेट किया है ओके। दैन नैक्सट क्वेश्चन है अ बॉय walk to his school from his village at 5 km per hour and return back at 7 km per hour. If he take 3 hours in all, then the distance between village and the school. कोई boy है वो अपने village तो चलता है स्कूल दी और कितनी स्पीड ते 5 किलोमीटर पर आवर तो वापस कितनी स्पीड ते आ रहे हैं 7 किलोमीटर पर आवर ठीक है। ये पूरे प्रोसैस के दौरान मतलब विलेज टू स्कूल जान दी ते स्कूल तो विलेज आन दी उन्होंने कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। तो डिस्टेंस दसो किन्ना विलेज ते स्कूल दे विच आपां ले लैंदे कि डिस्टेंस सपोज किन्ना D ओके। हुण इत्थे एवरेज स्पीड का कंसैप्ट यूज़ होगा बिकॉज विलेज तो स्कूल जा रहा है फिर स्कूल तो विलेज वापस आ रहा है। सो इस केस दे विच बेसिकली अपने कोल फॉर्मूला की यूज़ होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2D डिवाइड बाय टाइम टोटल कितना लग्या पूरी प्रोसैस नूं ओके। सो सब तो पहले एवरेज स्पीड करते हैं। एवरेज स्पीड थोनों मैं फॉर्मूला कल समझाया सी कितना हुंदा है 2 इंटू जिहड़ी इनीशियल स्पीड है इंटू जिहड़ी दित्ती हुई है कि जान टाइम उन्हें कितनी स्पीड रखी। सो एवरेज स्पीड का कंसैप्ट आप कल डिस्कस कर लिया से तुसीं वो वीडियो देख लियो ओके। मैं इत्थे सीधा ही लिख रही हूँ वह बेसिकली फॉर्मूला हुंदा है 2 × 5 × 7 डिवाइड बाय 5 + 7 इक्वल्स टू 2D की वैल्यू कढ़नी है तो टाइम कितना दिता होया है 3 आवर्स ओके। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो फाइनली जिहड़ी D की वैल्यू आ जाऊगी वो आऊगी 35/4 ओके। इहनूं कन्वर्ट करो डेसीमल दे विच क्योंकि आंसर डेसीमल च कढ़ना तो कितना आंसर आ जाऊगा 8.75 किलोमीटर्स ओके। सो आंसर इज A। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If a man runs at 10 meter per second, how many kilometers will he run in 1 hour 20 minutes? हुण इहनूं ध्यान नाल समझो कि कोई मैन है ठीक है वो 10 मिनट पर सेकेंड की स्पीड ते जा रहा है 10 मिनट पर सेकेंड। ਇਹਦਾ मतलब की है ਇਹਦਾ मतलब है कि वो 1 सेकेंड दे विच कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर्स का ओके। सो आपां ने किन्ने च कढ़ना है 1 hour 20 minutes।
सो इहनूं आपां मिनट्स दे विच कन्वर्ट कर लैंदे हैं। 1 आवर दे विच किन्ने मिनट्स हुंदे हैं 60 प्लस इस 20 होर कर दो तो किन्ने हो गए 80 मिनट्स। 80 मिनट दे विच आपां कढना है। ओके सो 1 सैकेंड दे विच 60 है। आपां नूं पता है कि जिहड़ा 1 मिनट हुंदा है वो किहदे इक्वल हुंदा है 60 सैकेंड्स है। सो अगर आपां एक नाल 60 नूं मल्टीप्लाई कर दांगे तो 1 मिनट बन जूगा ना। सो 60 सैकेंड्स किहदे इक्वल होए 10 इंटू 60 मीटर्स। ओके यानी कि इहनूं आपां की लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 600 मीटर्स। तो किन्ने मिनट्स चाहिए हैं 80 मिनट्स। सो इनू 80 नाल मल्टीप्लाई कर दो 80 मिनट्स किन्ने होंगे 600 इंटू 80 8 6 48,000। ओके उन्हें की पूछे किलोमीटर्स पूछे आपां नूं पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। सो जिहड़ी 3 जीरोज़ हैं वो तो मीटर च कन्वर्ट हो जाएंगे। सो फाइनली आंसर कितना आया 48 किलोमीटर। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा। आंसर आऊगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज विच इज 120 मीटर लॉन्ग। He finds that a train crosses a bridge in 10 seconds but it crosses him in 4 seconds. The speed of train in kilometer per hour. कहता कोई मैन है वो ब्रिज ते खड़ा है। सपोज आ ब्रिज है कोई मैन उरे खड़ा है ठीक है। तो जिहड़ा ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 120 मीटर। उन्हें देखा कि जिहड़ा ट्रेन है वो ब्रिज नूं क्रॉस करन दे लई लैंदी है 10 सैकेंड्स ते ओनू क्रॉस करन दे लई लैंदी है 4 सैकेंड्स। स्पीड दसनी है ट्रेन दी। हुण देखो सब तो पहले इत्थे की करांगे सब तो पहले आपां केस लैने कि ट्रेन ने ब्रिज नूं क्रॉस करन च कितना टाइम लिता। जदों कोई ट्रेन ब्रिज नूं क्रॉस कर रही है ठीक है तो वो ब्रिज की लेंथ भी कवर करूगी तो अपनी लेंथ भी कवर करूगी। मतलब उस केस दे विच टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अगर आप लै लैंने कि जिहड़ी ट्रेन है उसकी लेंथ है L। ओके सो उस केस दे विच टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया L प्लस 120 तो ये अपने को टाइम कितना दिता होया है 10 सैकेंड्स। ओके सो स्पीड ऑफ ट्रेन किहदे कोल आ गई L प्लस 120 डिवाइड बाय 10। इत्थे आपां स्पीड ऑफ ट्रेन सपोज लै रहे हैं V। ओके सो V इज इक्वल टू दिस आपां सिंपली फॉर्मूला लगाता स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली ट्रेन तो स्पीड दी इक्वल रहूगी चाहे वह ब्रिज नूं क्रॉस कर रही है चाहे वह मैन नूं क्रॉस कर रही है। सो ये नाल ही आपां की इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि मैन की लेंथ जिहड़ी है वो 0 है ठीक है। तो ये जी ट्रेन है वो अपना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है L तो टाइम कितना लै रही है वो 4 सैकेंड्स। सो अगर तुसीं ये दोनों चीज़ों इक्वेट करोगे आपस दे विच तो इत्थों थोड़ी L की वैल्यू निकल आऊगी। कितनी आ जाऊगी L की वैल्यू बेसिकली L इक्वल्स टू 80 आ जाऊगा। ओके सो हुण आपां V की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब की फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन। सो V इज इक्वल टू L बाय 4 कर लो। सो 80 डिवाइड बाय 4 तो अपने को कितना आ गया 20। हुण देखो ध्यान नाल इत्थे मीटर है इत्थे सैकेंड्स है। सो अपने को जिहड़ी स्पीड आई 20 मीटर पर सैकेंड आई आपां ने किलोमीटर पर आवर च करना है। मैं दस्सिया सी किलोमीटर पर आवर दे विच कन्वर्ट करन दे लई 18/5 नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो फाइनली आंसर कितना आ गया अपने को इत्थे आ जाऊगा 18 इंटू 4 कितना हुंदा 72 किलोमीटर पर आवर। ओके सो आंसर कितना आ गया ए। आई होप समझ लग गया होगा तो। Shashi row a certain distance downstream in 9 hours while it took her 15 hours to row the same distance upstream. How long will it take her to make the two-way journey in still water? हुण देखो ये विच कुछ टर्म्स यूज हुई हैं स्टिल वाटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो क्वेश्चन सॉल्व करन तो पहला ये टर्म्स आपां नूं मतलब पता होना चाहिए। ओके सब तो पहला देखो जिवें सपोज करो अपने कोल रिवर है ओके तो आप लै लैंने कि जिहड़ा रिवर है वह जिहड़ा फ्लो है वो इस साइड ते है तो रिवर की जिहड़ी स्पीड है उन्होंने आप मान लैंने कितनी है V। ओके तो ये एक बोट जा रही है रिवर दे विच। सो यह बोट है। हुण देखो हुण बोट जिहड़ी है वो पानी दे विच दो तरीके नाल फ्लो कर सकती है। पहला किहड़ा तरीका है कि उस डायरैक्शन च जावे जिधर पानी फ्लो कर रहा है। दूसरा की केस बन सकता है ओपोजिट जावे जिधर नूं पानी फ्लो कर रहा है। आप लै लैंने कि सपोज करो जिहड़ी बोट है इसकी स्पीड है U। ओके हुण अगर बोट जिहड़ी है वो उस डायरैक्शन च जा रही है जिधर नूं पानी फ्लो कर रहा है ठीक है। तो उस केस दे विच आपां डाउन स्ट्रीम स्पीड फाइंड करदे हुंदे हैं। ओके तो उहदी वैल्यू कितनी हुंदी है U प्लस V। बट अगर बोट ओपोजिट जा रही है जिधर नूं पानी फ्लो कर रहा है उस केस दे विच आपां अपस्ट्रीम स्पीड
ਨੂੰ फाइंड करते हैं तो ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी आऊगी u माइनस v, क्योंकि ऑब्वियसली बोट की स्पीड ज़्यादा होगी ना पानी नालों, ठीक है। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ u माइनस v। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ, ਕਿ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟਰੀਮ भी पुछ लेंदे हैं कई क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ, ठीक है। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ a ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ b। अगर अपने को स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा होवे तो सिंपली आ फॉर्मूला लगा दियो हाफ a प्लस b। मतलब इस केस दे विच आपां ने डाउन स्ट्रीम स्पीड ते अपस्ट्रीम स्पीड नू प्लस करता तो इनू डिवाइड करता 2 दे नाल। अगर अपने को स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी गई होवे तो उहदा फॉर्मूला हुंदा है हाफ a माइनस b, ठीक है। अगर बोट की स्पीड पूछी है तो प्लस करांगे, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है मतलब पानी की स्पीड पूछी है तो माइनस करांगे। ये 4 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, याद रखियो। हुण क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 9 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਅਪਸਟਰੀਮ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅਪਸਟਰੀਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ 15 ਘੰਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਵਾਟਰ ਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ u ਪਲਸ v ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 9 ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਮਾਈਨਸ v ਅਪਸਟਰੀਮ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 15 ਆਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 9u ਪਲਸ 9v ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15u ਮਾਈਨਸ 15v। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ फाइनली, इत्थों बन जाऊगा अपने को 24v इज इक्वल टू 6u। सो इनू कैंसल कर दो तो 1 ते गया 6 4 जा, सो v डिवाइड बाय u की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ओके, सो हुण इनू मैं एक बार रब कर देनी है। हुण इस केस च उन्हें की पूछा कि उन्हें 2 वे जर्नी की तो किन्ने टाइम की स्टिल वाटर च, मतलब हुण अपने को स्पीड पता होनी चाहिए पहला स्टिल वाटर की, टाइम आप टाइम कड्डांगे। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर का फॉर्मूला की दस्या सी मैं हाफ a प्लस b, ठीक है। हुण a किहदे इक्वल है u प्लस v दे, ते b किहदे इक्वल है u माइनस v। u की वैल्यू कितनी दिती हुई है 4, v की वैल्यू कितनी दिती हुई है 1। ओके, सो इत्थे कितना आ गया अपने को a की वैल्यू आ गई 5 ਤੇ b ਦੀ वैल्यू कितनी आई 3। सो कितना आ गया 8 हो गया। इत्थे कितना आई स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हुण टाइम फाइंड करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम किवें कड्डांगे, 2 वे ਦਾ टाइम ਪੁੱਛਿਆ, डिस्टेंस कितना ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ टोटल डिस्टेंस कड्डांगे ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ डिस्टेंस किवें कड्डांगे, बेसिकली ए वाला भी ਆਪਾਂ डिस्टेंस लिता सी, ए वाला डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम का, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम का। सो किसी एक दे विच वैल्यू फिल करके डिस्टेंस आ जाओ। सो u की वैल्यू कितनी है 4 तो v की वैल्यू कितनी है 1। ओके, सो 4 + 1 5 इंटू 9 कितना हो गया 45, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 45 डिवाइड बाय स्पीड कितनी कड्डी आपां 4। ओके, सो इनू जो डिवाइड करांगे तो अपने को कितना आ जाऊगा 22.5 आवर्स। आई होप थोनू समझ आ गया हो, तो कंसैप्ट भी समझ आ गए होंगे। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A train 300 meter long is running at a speed of 90 km per hour. How much time will it take to cross a 200 meter long train running in the opposite direction at 60 km per hour? ठीक है, ये फर्स्ट लैक्चर दे विच आप ऐसे क्वेश्चन किते सी, इसलिए इन्हू मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं करा रही, सीधा ही करते हैं कि जो टाइम ऑफ मीट होंगे वो किहदे इक्वल आऊगा टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। बेसिकली क्वेश्चन भी एक बार समझ लेने उन्हें कि एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ते जा रही है,
ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਕ 200 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ट्रेन ਜਿਹੜਾ कवर करू एक तो अपनी लेंथ कवर करूगी, एक दूजी ट्रेन की लेंथ कवर करू। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 प्लस 200 मीटर्स। ओके, तो ये रैलेटिव स्पीड किमें कढ़ांगे, क्योंकि ओपोजिट डायरैक्शन च आ रही दोनों ट्रेन, तो स्पीड प्लस होगी। 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 किलोमीटर पर आर, क्योंकि जो डिस्टेंस है मीटर च दिता होया है, तो अपने को आंसर भी सैकेंड्स च है, इसलिए आप इनू मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करांगे 5/18 नाल मल्टीप्लाई करके। ओके, सो इत्थे बेसिकली अपने को कितना आ गया 500 150 इंटू 5/18। सो इनू सॉल्व करो, 5 ते 10 ते गया, इत्थे 2 3 6 18, सो अपने को आंसर कितना आ गया 12 सैकेंड्स। ओके, हुण देखो 12 सैकेंड्स उरे कोई भी ऑप्शन च नहीं गिवन। आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तुसीं एक बार खुद भी सॉल्व करके देखियो। ओके, सो ये सी क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दे। आई होप तुहानूं सारे क्वेश्चन समझ आ गए होणगे। सो मिलते हैं न्यू टॉपिक दे नाल न्यू लैक्चर दे विच। अज लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच।